رات کو انتظامیہ کے کچھ افراد میرے ڈاکٹر کی معیت میں میرے پاس پہنچے۔ میں نے مائیکل جوشر کے روپ میں شدید درد و کرب کے آثار چہرے پر پیدا کر کے ان سے ملاقات کی اور وہ مجھ سے مقتولین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ میں نے غمزدہ لہجے میں کہا کہ میں اس عظیم نقصان کے پورا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے وہ صہیونیت کے ستون تھے۔ ان کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا ہمارے لیے انتہائی تاریک راستے کھولتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان کی کسر کیسے پوری ہوگی۔ ان لوگوں کی غیر موجودگی نے میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں اور جو مشن میں لے کر چل رہا تھا مجھے یقین ہے کہ اب میں اسے پورا نہیں کر سکوں گا۔ لوگ مجھے تسلیاں دینے لگے۔ ایک آفیسر نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کروں کیونکہ ان لوگوں کی غیر موجودگی میں میری ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ جائیں گی۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا کہ میں کس طرح اپنے آپ کو سنبھال پاؤں گا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ مجھ سے مختلف لوگ ملنے آئے اور میں نے بستر پر پڑے پڑے ان سے ملاقات کی۔ اس دوران میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، بس ہلکی سی غذا، جوس وغیرہ لے لیتا تاکہ جسمانی صحت بالکل ہی تباہ نہ ہو جائے۔ لیکن میرے اترے ہوئے چہرے اور ناگفتہ کیفیت کو ہر شخص ہی محسوس کر رہا تھا۔ تہذیب سے اس دوران صرف 2 بار چند جملوں میں گفتگو ہوئی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ مطمئن رہو، سب ٹھیک ہے۔ تہذیب نے کہا تھا کہ وہ بالکل مطمئن ہے اور صورتحال پر پوری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جوشو کی عنایات جاری ہیں اور وہ کر دیا گیا ہے جس کی خواہش کی گئی تھی۔ گویا سب کچھ میری مرضی کے مطابق تھا۔ اس کے بعد پہلی فرصت میں نے مسٹر جوشر کی دولت جو کرنسی کی شکل میں تھی وہاں سے منتقل کر دی۔ اس کے لیے مجھے تہذیب کو خفیہ طور پر طلب کرنا پڑا تھا اور رات کی تاریکی میں عقبی دیوار کے دوسرے حصے سے تہذیب نے نوٹوں کے بنڈل وصول کیے اور انہیں لے کر چل پڑی۔ اس نے دوسرے دن مجھے فون پر اطلاع دی کہ اس نے ان چیزوں کو بڑی ذہانت سے محفوظ کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ انتظار مجھے جس شخص کا تھا وہ ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا تھا، باقی ہنگامے بدستور تھے۔ غالباً 8ویں دن تل ابیب سے کچھ رہنما مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ یہ دینی عالم تھے اور ان کے ساتھ 2 فوجی افسر بھی تھے۔ میں نے ان کا استقبال کیا لیکن ویل چیئر پر بیٹھ کر، چونکہ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق میرے اندر بے پناہ کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ ایک عالم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دن کے لیے امریکہ چھوڑ دیں۔ یہاں آپ کے ذہن پر وہ تمام چیزیں سوار رہیں گی جو آپ کے لیے مہلک ہو سکتی ہیں۔ ہمیں آپ کی اشد ضرورت ہے، ہم آپ کو اس کیفیت میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا کہ صورتحال کچھ بھی ہو، میرا یہاں رہنا ضروری ہے۔ میں نے اس شخص علی یار خان کے بارے میں تل ابیب کے رہنماؤں سے مفصل گفتگو کی اور ان کے چہروں پر جو بے بسی اور جو کرب دیکھا اس نے میرا سینہ فخر سے پھلا دیا۔ میں کسی کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ لوگ تیش کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہوں جس کا کوئی حل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ حکومت پاکستان سے اس سلسلے میں احتجاج کیا جائے اور علی یار خان کے اہل خاندان کو ان معاملات میں ملوث کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علی یار خان کی شہریت اب پاکستان کی نہیں ہے۔ جس وقت وہ امریکہ میں مقیم تھا اس وقت بے شک اسے پاکستانی باشندہ کہا جا سکتا تھا، لیکن امریکہ سے نکلنے کے بعد اس نے کبھی پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ اسے بیروت کی شہریت مل گئی تھی، چنانچہ اب حکومت پاکستان سے اس سلسلے میں احتجاج بیکار ہے۔ میری یہ کوشش بھی میری ہی تسلی کے لیے تھی کہ کم از کم ان لوگوں کو یہاں بھی بے بسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان 8 افراد کی مصروفیات کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی تھی۔ اخبارات کے بیانات سے اس تحقیقات کے نتائج مسلسل سامنے آ رہے تھے۔ وہ لوگ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ یہ 8 افراد اس رات کسی خفیہ پروگرام کے تحت نکلے تھے اور کسی کو بتائے بغیر کہیں چلے گئے تھے اور اس کے بعد ان کی لاشیں ہی نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کی گاڑیاں شہر کے مختلف حصوں میں پائی گئی ہیں، لیکن اس سے کسی خاص پہلو کا تعین نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں اب ایک خدشہ اور بھی پیدا ہو گیا تھا جس کے لیے میں نے تہذیب سے رابطہ قائم کر کے مسٹر جوشو کو ایک پیغام بھجوا دیا۔ میں نے تہذیب سے کہا تھا کہ وہ مسٹر جوشو سے کہے کہ اب وہ مجھ سے قطعی لا تعلق رہیں اور کسی بھی طرح مجھ سے تعلق کا اظہار نہ کریں۔ تہذیب نے اس گفتگو کے بعد مجھے اطلاع دی کہ انتظامیہ کے افراد نے مسٹر جوشو کو 2 دن اور 2 رات اپنی تحویل میں رکھا اور مسٹر جوشو ہی نہیں بلکہ لوئیشی بھی پولیس کے عتاب کا شکار رہی ہے اور ان لوگوں سے مختلف طریقوں سے میرے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کارروائی کرنا نامناسب سمجھا اور نہایت غور و خوض کے بعد ایک رات میں اپنی جگہ سے نکل کر تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ایک ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں سے پولیس کے ایک محکمے کو ٹیلی فون کیا اور جب ٹیلی فون ریسیو کر لیا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں علی یار خان ہوں۔ یہاں میری آمد صرف اولیو ہاورڈ کے لیے ہے اور میں نے اولیو ہاورڈ کو دنیا کے ہر گوشے میں ناکامی اور شکست سے دوچار کرنے کے بعد امریکہ آ کر اس سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
इस सिलसिले में अगर मेरे साथ किसी को मुलव्विस समझा जाएगा तो ये सिर्फ इंतजामिया की नाअहली होगी। मैं अपनी जाती जंग में किसी और को उलझाना नहीं चाहता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने तौर पर कर रहा हूँ। ये बात करने के बाद मैंने फोन बंद किया और अपने तमाम निशानात मिटाए, यहाँ तक कि फर्श से जूतों के निशानात भी साफ कर दिए ताकि कोई शुबा बाकी न रहे। उसके बाद मैं बाहर निकल आया। माइकल जोशर तहखाने में मजे की जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपने आप से समझौता कर लिया था। बाहर के हालात की मैंने उन्हें अभी हवा नहीं लगने दी थी कि खामखा जज्बाती हो जाते और मुमकिन है जोश के आलम में कोई ऐसी हिमाकत कर बैठते कि मुझे उनकी जिंदगी का फौरी खातिमा करना पड़ता। मजीद 2 दिन इंतजार करना पड़ा और तीसरे दिन मेरा सबसे प्यारा दोस्त, सबसे अजीज साथी ऑलिव हार्वर्ड मुझसे मुलाकात करने के लिए आया। उसके साथ CIA के 4 अफराद थे जो बहुत ही चाको चौबंद और मुस्तैद नजर आते थे। मेरे पास पहुंचने के बाद उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया और फिर अफसोसनाक लहजे में बोला, मैं उन्हीं 8 अफराद के कत्ल के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ जिनकी जुदाई हमारे सीनों पर गहरे दाग छोड़ गई है। आपके डॉक्टर से मिलकर मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मुझे आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस रात वो तमाम अफराद कहाँ जाने के लिए निकले थे। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपका उनसे मुसलसल राब्ता रहता था। वो कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ उन 8 को किसी खास सिलसिले में जमा होना था और कोई मीटिंग करना थी, या अगर किसी तरह उस बदबख्त अली यार खान ने उन लोगों को यकजा किया था तो उन्हें क्या कहकर उस जगह बुलाया गया था। अगर आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई कर दें तो मेरा ख्याल है कि मैं बहुत से मसाइल हल कर लूंगा। मैंने कहा काश वो मुझसे राब्ता करके मुझे सूरत हाल बता देते या फिर मैं भी उनके साथ शरीक होता। मौत तो एक दिन आनी ही है। अगर मैं उनके साथ ही चला जाता तो शायद मुझे इस तरह हर लम्हा हर घड़ी न मरना पड़ता। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, गोया आपको इस सिलसिले में कुछ इल्म नहीं। मैंने कहा, नहीं मेरे दोस्त, नहीं। वो बोला, इसके अलावा कुछ और मालूमात भी मुझे आपसे दरकार हैं। मैंने सुना है कि उन दिनों चंद लोग आपकी मावनत कर रहे थे और आपके दफ्तरी उमूर में आपका हाथ बटा रहे थे। वो कौन थे? मैंने कहा, 2 अकीदतमंद मियाँ बीवी जो अपने नेक जज्बों से मेरी मावनत कर रहे थे। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, क्या अब भी वो आपके पास आते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने उन्हें खुद ही रुखसत कर दिया था क्योंकि मेरे पास उनके लिए मजीद कोई काम नहीं था। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, आपसे ये गुफ्तगू करने का मकसद यही है कि मैं गहरी निगाह से हालात का जायजा ले रहा हूँ। अगर अली यार खान यहाँ आने के बाद इन हरकतों पर तुल गया है तो वो आपकी जिंदगी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसका आप तक पहुंच जाना मुश्किल नहीं होगा। मैंने चेहरे पर किसी कदर ताज्जुब के आसार पैदा करके कहा, गोया तुम्हारा मतलब है कि वो? ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, हाँ, हम इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि क्यों ना आप यहाँ से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं, कुछ अरसा वहाँ कयाम करें। इस दौरान हम उस चोर का पता लगा ही लेंगे। मैंने कहा, इस पर गौर किया जा सकता है। मुझे जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अपने मिशन की तकमील के लिए मैं कुछ और सांसें चाहता हूँ ताकि अपने मरहूम दोस्तों की इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं जो उनके सीने में मौजूद थीं। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, मैं फौरी तौर पर कुछ इंतजामात किए देता हूँ। उसके बाद इंतजामिया से गुफ्तगू करके मैं आपको यहाँ से मुंतकिल करने के इंतजामात कर दूंगा। ऑलिव हार्वर्ड रस्मी सी गुफ्तगू के बाद उठ गया और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। वो सदर दरवाजे से निकलकर पोर्च की जानिब बढ़ गया। मैं अपनी जगह खड़ा हुआ उसे देख रहा था। दफतन मैंने ऑलिव हार्वर्ड को चौंकते हुए देखा। गाड़ी में कदम रखते रखते वो एकदम नीचे उतर आया था और फिर जमीन पर बैठकर वो किसी निशान को देखने लगा। मेरी छठी हिस्स ने मुझे एहसास दिलाया था कि गड़बड़ हो गई है। वो क्या देख रहा है इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जहन बहुत से मामलात की तरफ जाता था। दफतन मैंने ऑलिव हार्वर्ड को अपने लिबास से पिस्तौल निकालते हुए देखा और फिर उसका रुख सदर दरवाजे की जानिब मुड़ते हुए महसूस किया। बस ये एक लम्हा मेरे लिए बहुत काफी था, लेकिन गड़बड़ हो गई थी और कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। ऑलिव हार्वर्ड जैसे जीरक आदमी से हर तरह की तवक्को रखी जा सकती थी। यकीनन उसने कोई ऐसा निशान पा लिया था जो मेरी तरफ इशारा करता था और अब सूरत हाल मेरे हाथ में नहीं थी। एक लम्हे में फैसला करके मैं सीधा उस तहखाने की जानिब दौड़ा जहां माइकल जोशर मौजूद था। उस तहखाने के अलावा उस वक्त और कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां मैं जान बचा सकता। चुनाचे मैं फुर्ती से तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गया। वक्ती तौर पर यहीं पनाह ली जा सकती थी। माइकल जोशर मसहरी पर दराज गहरी नींद सो रहा था। मैं एक सोफे पर बैठ गया और ऊपर होने वाली भाग दौड़ का अंदाजा करता रहा। मेरा जहन उन इम्कानात का जायजा ले रहा था जिनकी वजह से ऑलिव हार्वर्ड को माइकल जोशर पर शुबा हुआ। बज़ाहिर कोई बात समझ में नहीं आती थी। जमीन पर झुककर देखने से ज्यादा ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद जूते का कोई निशान। दफतन मेरे जहन के खाने खुल गए।
मैंने जिस टेलीफोन बूथ से इंतजामिया को मुखातिब किया था वहां से मैंने रिसीवर पर से निशानात मिटा दिए थे, फर्श से जूतों के निशानात भी साफ कर दिए थे, लेकिन टेलीफोन बूथ के बाहर मुमकिन है जूते का कोई निशान रह गया हो और यहाँ पोर्च में यही निशान ऑलिव हार्वर्ड की रहनुमाई का बायस बना हो। बज़ाहिर इसके अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती थी। अब मैंने समझ लिया था कि फिलहाल मैं यहाँ कैदी हूँ। देखना यह था कि ऑलिव हार्वर्ड पर मेरी अचानक गुमशुदगी का क्या असर होता है और वो किस अंदाज में सोचता है। माइकल जोशर की शख्सियत अब मशकूक हो गई थी। मैं सोते हुए माइकल जोशर को देखता रहा। हालात से नावाकिफ ये शख्स आराम की नींद सो रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि मैंने उसके लिए क्या मुश्किलात पैदा कर दी हैं। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। ऊपर से अब भाग दौड़ की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। मैं सोचने लगा कि ऑलिव हार्वर्ड ने इस सिलसिले में क्या फैसला किया होगा। क्या उसके जहन में ये शुबा मौजूद है कि मैं अब भी इसी इमारत में हूँ, या फिर उसने ये सोच लिया कि मैं बाहर निकल गया। कोई फैसला करना अभी मुश्किल था। मुझे कम से कम रात होने का इंतजार करना था। ऑलिव हार्वर्ड की जहनी पहुंच से मैं नावाकिफ था। उसने यकीनन ये सोचा होगा कि मेरी इस तरह गुमशुदगी ताज्जुब खेज है और मुमकिन है मैं इसी कोठी के किसी हिस्से में छुपा हुआ हूँ। देखना यह था कि वो इस तहखाने का सुराग लगा पाता है या नहीं। हाँ, अगर किसी तरह उसने इस मुजस्मे का राज पा लिया तो फिर अली यार खान का अल्लाह मालिक है, उसके बाद बचना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे अब इन तमाम बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी। माइकल जोशर थोड़ी देर के बाद जाग गया। उसने गर्दन घुमाकर मुझे देखा और चौंक पड़ा। अलबत्ता मुंह से कुछ बोलने की कोशिश न की। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा तो उसका काम बन गया। वो बोला, तुमने मेरी जिंदगी जिस तरह मअतल करके रख दी है, मैं इसे कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा, क्या तुम इस बात का शुक्रिया नहीं अदा करोगे माइकल जोशर कि मैंने तुम्हें इस तहखाने में कोई तकलीफ नहीं होने दी। वो बोला, वाकई तुम शुक्रिया के काबिल हो, क्योंकि मेरे ही घर में तुमने मुझे कैदी बनाकर मेरी तमाम चीजों पर कब्जा कर लिया है और इसके बाद मुझ पर मुसलसल एहसानात किए जा रहे हो। बिलाशुबा इन एहसानात का सिला कोई शख्स किसी को नहीं दे सकता। उसकी बात पर मैं आहिस्ता से हंस पड़ा। मैंने कहा, माइकल जोशर, तुम्हारी इस कोठी पर अब मेरा कब्जा नहीं है, बल्कि अमरीकी इंतजामिया के अफराद इस पर काबिज हैं। जोशर चौंक पड़ा, क्या मतलब? मैंने कहा, हाँ, यहाँ अब इंतजामिया का कब्जा है और बेशुमार लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं। माइकल जोशर ने कहा, वजह? मैंने कहा, मेरा दोस्त ऑलिव हार्वर्ड। हकीकत यह है माइकल जोशर के तुम्हारी तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार वही है। उससे मिलो तो ये बात जरूर कहना। माइकल जोशर अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर वो भर्राए हुए लहजे में बोला, तुम निहायत शैतान सिफत इंसान हो। दर हकीकत मैंने तुम जैसा शैतान इससे कबल नहीं देखा। मैंने कहा, ऐसा न कहो माइकल जोशर, तुम्हारी हैसियत अपनी जगह मुसल्लम है। मेरे जहन में दर हकीकत अभी तक माइकल जोशर के बारे में कोई सूरत वाज़े नहीं हो सकी थी। उसे जिंदा छोड़ने में बहुत सी कबाहतें थीं और अपनी खुदनुमाई का थोड़ा सा जज्बा भी। बहरहाल इसके लिए फैसला करना फौरी तौर पर जरूरी नहीं था। फिलहाल बाहर की सूरत हाल का जायजा लेना था। उस रात तकरीबन 12 बजे मैं तहखाने से बाहर निकला। एक एक चीज की सुनगुन ले रहा था। कमरे में कदम रखने के बाद बाहर का अंदाजा किया तो इमारत में मुकम्मल खामोशी महसूस हुई। उस कमरे से बाहर निकल आया और ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। यहाँ से जायजा लेने में खासी आसानियां थीं। मुलाजिमों के क्वार्टर तारीक नजर आ रहे थे, जिसका मतलब था कि उन लोगों ने मुलाजिमों को भी कब्जे में कर रखा है। तहजीब मेलकम एक्स से राब्ता नहीं हो सका था, लेकिन अब यहाँ के टेलीफोन पर उससे राब्ता कायम करने का मतलब तहजीब की जिंदगी को खतरे में डालना था। कोठी के दरवाजे के बाहर कुछ नकलो हरकत महसूस हुई, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी निगरानी मुसलसल की जा रही है। ऑलिव हार्वर्ड जैसे शैतान से इस बात की तवक्को की जा सकती थी कि उसने मेरी गुमशुदगी के बाद कोठी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर दिया होगा। ये जायजा जरूर लिया होगा उसने कि एक लम्हे में फरार होकर मैं कहाँ जा सकता हूँ, और मुमकिन है अभी तक कोठी पर उसका शुबा बाकी हो। और उसकी तस्दीक के लिए एक बेहतर जरिया मेरे हाथ आ गया। अपने उस मंसूबे पर मैंने गौर किया। पोर्च में निगाह दौड़ाई तो माइकल जोशर की कार बाहर मौजूद थी। उसकी चाबी माइकल जोशर की ख्वाबगाह में एक मखसूस जगह रहती थी। मैंने इंतहाई एहतियात से नीचे आकर वो चाबी हासिल की और फिर तहखाने में वापस माइकल जोशर के पास पहुंच गया। मैंने कहा, क्या तुम एक सुनहरे मौके से फायदा उठाना चाहते हो माइकल जोशर? वो हैरान निगाहों से मुझे देखता हुआ बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, यहाँ से जाओ, किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर ऑलिव हार्वर्ड से राब्ता कायम करो और उसे कहो कि अगर अली यार खान से समझौता करना चाहता है तो उससे मुलाकात करे। मैं तुम्हें एक टेलीफोन नंबर देता हूँ, उस टेलीफोन पर मुझसे गुफ्तगू की जा सकती है। बाकी ऑलिव हार्वर्ड अगर इस सिलसिले में कोई सरगर्मी दिखाना चाहे तो फिर ये बात मेरे और उसके दरमियान होगी। तुम्हें इसलिए जिंदगी दी जा रही है कि तुम ऑलिव हार्वर्ड को उसकी असल हैसियत समझा दो। माइकल जोशर बोला, मजाक कर रहे हो मुझसे? मैंने कहा, नहीं माइकल जोशर, ये चाबी है और बाहर तुम्हारी कार मौजूद है, निकल जाओ इससे पहले कि मेरा प्रोग्राम तब्दील हो जाए।
माइकल जोशर ने कहा, लाओ चाबी मुझे दो, और मैंने चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो मुश्तबा निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे बाहर चलने की पेशकश की तो वो तहखाने से बाहर निकल गया। उसे शायद मेरी इस हिमाकत पर अभी तक यकीन नहीं आया था। मैंने बाहर तक उसकी रहनुमाई की और चंद लम्हे के बाद माइकल जोशर ने कार स्टार्ट कर दी। जी तो बहुत चाहता था कि उसकी रवानगी पर बाहर होने वाले रद्द-ए-अमल का जायजा लूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इस सुनहरे मौके से अगर फायदा न उठाता तो फिर शायद इस कोठी से कभी बाहर न निकल पाता। मैं खुदा का नाम लेकर अकबी दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। दीवार फलांगने भी नहीं पाया था कि गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी, लेकिन वो सामने के हिस्से में थी। एक लम्हे में सूरत हाल का अंदाजा हो गया। माइकल जोशर कार लेकर बाहर निकला होगा और उसे रोकने की कार्रवाई की गई होगी। अभी तो ऑलिव हार्वर्ड यही समझा है कि अगर मैं माइकल जोशर के मेकअप में यहाँ मौजूद हूँ तो यकीनन माइकल जोशर यहाँ नहीं होगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अकबी दीवार कूदने के बाद मैं एक सीध में दौड़ता चला गया और उस वक्त तक दौड़ता रहा जब तक कि वहां से काफी दूर न निकल आया। गोलियों की आवाज देर तक मुझे सुनाई देती रही और उसके बाद खामोशी छा गई। मैं अब अपना सांस दुरुस्त करते हुए तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंचकर मैंने एक टैक्सी ली और उसमें बैठकर चल पड़ा। तहजीब मेलकम एक्स का हाल भी मालूम करना था। माइकल जोशर के मुलाजमीन ऑलिव हार्वर्ड के कब्जे में जा चुके थे, इसलिए नहीं कहा जा सकता था कि तहजीब की निशानदही हुई है या नहीं। जब मैं अपनी बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो सूरत हाल बिल्कुल पुरसुकून नजर आई। मेरा चेहरा अब भी माइकल जोशर के चेहरे से मिलता था। लिबास भी उसी का पहने हुए था। उससे निजात के लिए जोशू से राब्ता कायम किए बगैर कोई और चारा नहीं था। एक अजनबी इंसान की हैसियत से मैं 2-3 बार ही उस राहदारी से गुजरा जिसमें हमारा फ्लैट था। फ्लैट में रोशनी झलक रही थी। बड़ी हिम्मत करके मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर वहां से दूर हट गया। एक आड़ से मैंने दरवाजा खोलने वाले को देखा। वो तहजीब मेलकम एक्स ही थी जो पुरतजस्सुस निगाहों से इधर उधर देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म का खौफ या बेचैनी के आसार न पाकर मैं आड़ से निकल आया और उसके सामने पहुंच गया। उसने कहा, ओह अंदर आ जाओ, और मैं तेजी से अंदर दाखिल हो गया। तहजीब ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने पूछा, हालात पुरसुकून हैं तहजीब? वो बोली, हाँ अभी तक तो पुरसुकून है। मैंने कहा, तुम्हारा नया फ्लैट कहाँ है? वो बोली, निचली मंजिल के आखिरी सिरे पर। मैंने कहा, क्या वो भी जोशू की मिल्कियत है? बोली, नहीं, जोशू ने उसे फौरी तौर पर किराए पर हासिल कर लिया है। मैंने पूछा, कुछ सामान वगैरह है उसमें? बोली, हाँ मैंने एहतियातन थोड़ा बहुत सामान उसमें मुंतकिल कर दिया है। लेकिन अली तुम खैरियत से तो हो ना? मैं सूरत हाल से नावाकिफ नहीं हूँ। मैंने कहा, गोया तुम्हें सब कुछ इल्म है। मेरा मतलब है ऑलिव हार्वर्ड के बारे में। तहजीब ने कहा, अखबारात पूरी तफसील लिख रहे हैं, गालिबन तुम तक अखबार नहीं पहुंचा। मैंने कहा, नहीं डियर, मैं तो माइकल जोशर के साथ तहखाने में कैद था। तहजीब सनसनीखेज निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने पूछा, अब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, तमाम चीजें उठाकर यहाँ से निकल चलो। किसी न किसी तरह वो जेनी हार्पर तक जरूर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, और तहजीब ने असबात में गर्दन हिला दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।